बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार छोटा सा अलग से क्वेश्चन आता है इस पे कभी कभी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव, what is, what is, what was, what will be. The temperature right now is 30 degrees. ऊपर कहाँ देख रही है? The temperature right now is 30 degrees. सर एसी है, चलाया क्यों नहीं हुआ? अभी उतनी गर्मी नहीं है, ठीक है ना? The temperature is 30 degrees. It should be less than 25 degrees. The temperature should be less than 25 degrees, then it is a pleasant weather. What is and what should be, what ought to be. How much did you score in pre-boards? कुछ भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है सच बोलना है। 100%, बिल्कुल गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। आप हमें एक चीज अंडरस्टैंड करने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं, अभी देखना। तो राघव स्कोर्ड 100% सारे सब्जेक्ट्स में या मैथ्स में, सारे में। Raghav scored 100% in all the subjects. Now that is positive. That is a part of positive economics. Sir, I am just being positive. बोला आपने be positive. What is normative economics? You should have topped your school. I did. ठीक है ना? I just did by scoring 100% in all the subjects. ठीक है, तो चलो मैं कह रहा हूँ you should get up early in the morning. You should get up early in the morning. You should मतलब एक होता है ना कि morals पे बेस होना चाहिए। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें रात को टाइम से सोना चाहिए, तुम्हें खाने के बीच में ज्यादा गैप नहीं देना चाहिए। क्या होना चाहिए? दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या है? दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वी डिस्कस द टर्म इन्फ्लेशन इन द लास्ट क्लास। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जनरल प्राइस लेवल। The rate of inflation is somewhere around 6 to 7%. Is 6 to 7%. That is positive economics. It should not be more than 8%. The rate of inflation of an economy should not be more than 8%. Positive या normative? Rate of inflation in an economy should not be more than 8%. Positive या normative statement? Normative. Normative meaning to what? Positive economics, it studies the facts of life, it deals the things as they are. Positive economics deals with what are the economic problems. The rate of poverty, संभाल लेगा अपने आप को, सुनने पे ध्यान। The rate of poverty, yeah, unemployment rate is 25%. Just a statement. The unemployment rate is 25%. 25% of the people are unemployed. 25% of those people who are willing to work are unemployed. 25%. Unemployment rate should be less than 10%. Unemployment rate should be less than 10%. Unemployment rate is 25%. Positive statement या normative? Positive. What is, what was, what will be, अगर ऐसी statements हैं तो वो positive statement की category में आती हैं। What should be, what should have been, जैसे आता ना होना चाहिए था, होना चाहिए, ऐसा रिलेट कर पा रहे हो तो वो एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, वो एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। लिटरेसी रेट इन इंडिया इज समवेयर अराउंड 80%. पॉजिटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव? पॉजिटिव. द लिटरेसी रेट शुड बी मोर देन 95%. पॉजिटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव? नॉर्मेटिव। फर्क समझ आ रहा है? फर्क समझ आ रहा है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, हाउ दे आर,
For example, India is an overpopulated country. The population of India is 150 crores. Positive or normative? Positive. The population of the country should not be so high. Positive statement or a normative statement? Normative. Positive economics deals with economic issues related to past, present, or future. Positive economics describes what was, what is, and what will be under the given state of circumstances. These statements do not pass any value judgments. Value judgments जैसे वो होते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होते हैं value judgments based on morals. They do not pass any value judgments. They talk about facts. They talk about facts which can be verified with data. Which can be verified with data. Which can be verified with data. Now comes an important question. जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमारी हेल्प करेंगे एक चीज अंडरस्टैंड करने में. उसने जो बोला 100% वाली बात, उससे अभी एक चीज आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी. पॉजिटिव स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में थोड़ा फर्क समझ आया कि क्या होता है? ठीक है, चलो. क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा सच होगा? मतलब जो सच है उसकी बात हो रही है, वो है पॉजिटिव स्टेटमेंट? क्या पॉजिटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है. इट कैन बी रॉन्ग. पॉजिटिव स्टेटमेंट नो. नो या नो आइडिया? नो आइडिया बोलना फिर. सर नो ही तो बोला था मैंने, आइडिया लगा लो आप. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमेशा फैक्ट्स होते हैं, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं. झूठ भी हो सकता है, हमेशा करेक्ट होता है. करेक्ट होता है. कैन बी रॉन्ग. कैन बी रॉन्ग. कैन बी रॉन्ग. गलत नहीं हो सकता. तो लेकिन मैंने बोला कि राघव स्कोर्ड 100%. Raghav from K.R. Mangalam scored 100% in all the subjects in his pre-boards. Boards में क्या होता है वो तो अलग बात है. Pre-boards में he scored. Now that statement is a positive statement or a normative statement? That is a positive statement. फिर जो बोल रहे हैं कि ये सच होता है, तो ये तो सच नहीं है. क्या ये सच है बेटा? झूठ बोला? झूठ बोलते हो बेटा? सच बोला है, ये सच है. सच है. तो कैन दिस बी वेरीफाइड? जो इसने मार्क्स बताया, कैन दैट बी वेरीफाइड? डेफिनेटली. अप्रोच केआर मंगलम. हम केआर मंगलम से रिपोर्ट कार्ड मांग सकते हैं, हम आपसे रिपोर्ट कार्ड मांग सकते हैं. तो इफ समथिंग कैन बी वेरीफाइड, इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. वेरीफाई करा, आप भी केआर मंगलम से हैं, तो बेटा क्या किसी भी बच्चे के आज तक हर सब्जेक्ट में प्री बोर्ड में 100% आए हैं? फैक्ट चेक. यू मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट. द पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड. और जब वेरीफाई करा तो पता चला कि वो गलत थी. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, सर हमने को बोला पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा सही होती है. पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ये है. अब वो सच है कि नहीं है आप वेरीफाई कर सकते हो. डेटा है, चेक कर लो, वो सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है. बात समझ आई? तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी इनकरेक्ट एज वेल. कैन बी इनकरेक्ट एज वेल, बट यू हैव डेटा टू वेरीफाई इट. बट मैं बोल रहा हूं इट शुड नॉट रेन टुडे. इज इट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? इट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. It should not rain. अरे can it be verified? Should not. बात समझे? Cannot be verified. It is raining. It is raining outside. Positive statement या normative? Positive. Because it can be verified. आप बाहर गए, तब बाहर तो कोई बारिश नहीं हो रही. But statement क्या थी, वो positive या normative? तो positive statement गलत हो सकती है. She is listening to me very, very carefully. Is it a positive statement or a normative statement? But is it correct?
You should be listening to me. You should be listening to me very, very carefully. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, फर्क समझ आया बेटा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में? आई होप सो. Positive economics is neutral between ends. Positive economics remains strictly neutral with respect to ultimate ends. It avoids economic value judgments. For example, a positive economic theory might describe that manufacturing and sale of cigarettes is injurious to health, but it does not provide any instruction or judgment on what policy ought to be followed to avoid cigarettes in an economy. Smoking cigarette is injurious to health. It causes cancer. Now that is a positive statement or a normative? Positive. क्या उन पर लिखा कि don't smoke please, you should not be smoking? Sir, you have no idea. ठीक है ना, मैं बता देता हूं कि उस पर कुछ ऐसा नहीं लिखा होता कि डोंट स्मोक. वो वार्निंग दे रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. अल्कोहल पे लिखा होगा बॉटल पे इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट ये नहीं लिखा होगा यू शुड नॉट बी ड्रिंकिंग, यू शुड नॉट बी स्मोकिंग. बात समझ आ रही है? तो दे डोंट पास वैल्यू जजमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. क्लियर? According to Robbins, Sir, कौन Robbins? Economist. Economics is not concerned with moral or ethical questions. Positive economics. Economics is not concerned with moral or ethical questions. As a branch of knowledge, economics is not concerned with moral or ethical questions. An economist should analyze the things as they are. We have to take decisions. We have to run the economy. फाइनेंशियल्स की बात करो, डोंट टॉक अबाउट मॉरल्स और एथिक्स. ऐसा इन्होंने बोला. मतलब सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं ना, तो इसलिए जब भी ऐसी कोई थॉट होती है तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स एन इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस. एन economist should analyze the things as they are and has no right to give judgment. You have no right to tell me what time I have to get up and what time I have to sleep. नहीं, point is ये एक इकोनॉमिस्ट की थ्योरी है कि पॉजिटिव होनी चाहिए इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव स्टेटमेंट स्टडी करो, व्हाट शुड बी, नहीं व्हाट इज. डू नॉट कंफ्यूज स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विद द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ. मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ. दे कैन बी इनकरेक्ट. Positive statements should not be confused with the statements of truth. As statements of truth, they may be true or false. If Raghav says that India is the most populated country in the world, and Utkarsh says that China is the most populated, is India the most populated country in the world? Now it is. Now it is. Point is, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो, आप कह रहे हो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, आप कह रहे हो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, दोनों में से कौन सी पॉजिटिव है? दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी पॉजिटिव स्टेटमेंट है? गुड, वेरी गुड आंसर, दोनों पॉजिटिव है. आपने बोला इंडिया, आप करेक्ट आंसर पे जा रहे हो. मैं ये तो समझाने की कोशिश, वो भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि positive state, do not confuse the statements of positive economics as the statement of truth. Both are positive statements, but both are not correct. Now we will verify it with the facts to check whether they are correct or not. But sir, positive word क्यों यूज किया फिर इसके साथ? थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, पॉजिटिव तो मतलब सही होगी बात. However, Paris is wrong and Utkarsh is right. अभी मतलब डेटा चेंज हो गया. जब बुक छपी थी तो चाइना वाज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो इन्हें थोड़ी ना पता था इंडिया इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगी. द पॉइंट टू बी नोटेड, हम भी मतलब ऐसे वो भी अभी फोरकास्टेड है या हो चुका है कि इंडिया इज अबाउट टू सरपास चाइना और इट हैज ऑलरेडी सरपास चाइना. थोड़ा मैं क्या बताऊं, हाँ मतलब ऐसा है कि इट इज अबाउट टू, इट इज अबाउट टू, मतलब लास्ट आई रेड वाज इट वाज अबाउट टू. हाँ वही चेक कर बस सर, अभी चेक किया मैंने, हो गया अभी, वो बस 5 मिनट पे.
इंडिया। इंडिया नंबर 1 पे आएगी। ओलंपिक्स। ऐसा लगा। कुछ चीजों में इंडिया नंबर 1 हो चुकी है। पॉपुलेशन इज वन ऑफ दैट। नॉट अ गुड अचीवमेंट बट ठीक है। पता है दिक्कत क्या है? अभी दिखाता हूँ। एरिया। किसने बोला? वेरी गुड। कि काश जगह भी होती इतने सारे लोग रखने की, तो दिक्कत नहीं थी। एरिया इंडिया का है 3 मिलियन स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और चाइना का 9 पॉइंट। अब समझ रहे हो? ध्यान नहीं दिया होगा कभी कि अच्छा इतना फर्क है एरिया में। और सोचो यूएस का एरिया भी हमसे ऑलमोस्ट 3 गुना है। और पॉपुलेशन देखो उनकी। और टॉप 10 रिचेस्ट में देखो कितने हैं। उनकी इकोनॉमी का साइज देखो। 27 ट्रिलियन। 23.2 हम 3.2 ट्रिलियन। ठीक है ना? कुछ तो सेम है। ठीक है, मतलब हम अब अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड वी गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। तो हम वहां से शुरू कर रहे हैं ना, हम लेट शुरू करें। तो अब इंप्रूव कर लेते हैं। तो आप कहां से शुरू करें वो भी एक रोल प्ले करता है। बट अब आपके हाथ में है कि किस स्पीड पे ग्रो करना है। अब हम उनसे फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 6 to 7% है, उनका 1 to 2% है। तो उस रेट पे अगर हम ग्रो करते गए तो एक टाइम आएगा ना कि आगे बढ़ेंगे। तो ग्रोथ रेट हमारा बहुत अच्छा है। बट ये वरिंग फैक्टर है बहुत बड़ा। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत बड़ा वरिंग फैक्टर है। वही हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज भी है, वही हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। ओके 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 ओके। ठीक है जी। तो पॉइंट इज, अब ये तो चेंज हो गया ना फिर, क्योंकि जब अब हो ही गया तो पारस इज इंडिया इज मोस्ट। तो उत्कर्ष इज रॉन्ग। एंड सोचो किताब बदल दी बेचारों ने, इंडिया चाइना ने। पारस इज, तो दोनों ने बोला। पारस ने बोला इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। आज पारस कितना खुश होगा। आज उसकी स्टेटमेंट सही हो गई। उसने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था। 10 साल से बेचारे हमेशा पारस को ही गलत मान रहे थे। पारस said India is the most populated country. Utkarsh said China is the most populated country. Both are positive statements. So positive statements and the statement of truth are two different things. Normative economics, normative science, normative economics tells us what ought to be, what should be. Normative economics deals with what ought to be or how the economic problem should be solved. For example, India should not be the most populated country in the world. Now that is a positive or a normative statement? Normative. India is the most populated country in the world. Normative economics discusses what are desirable things, should be realized, and what are undesirable things. एक second. What are desirable and what are undesirable? कौन कहता है? Normative बताता है. Talks about desirable and undesirable things. It gives decisions regarding value judgments. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग हो चुका है, इट डील्स विद हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हाउ दे आर सॉल्व्ड। नॉर्मेटिव, what ought to be, what should be, or how the problem should be solved. Verification, positive economics can be verified with actual data. Normative cannot be verified. They are just value judgments. Purpose, it aims to make real description of an economic activity. It aims to determine the ideals. Ideals, ये real description, it aims to make the real description.
मतलब aims to. It might not be the correct statement, but aim क्या है? बताना कि अभी situation क्या है? The temperature right now is 30 degrees. Is it a positive statement? It is a positive statement, but is it necessary that it is correct? Temperature हो सकता है 25 हो सकता है 35 हो, but the aim is to describe something which is happening right now. Okay. It should not be more than 25% today. Is it a positive statement or a normative statement? The temperature should not be more than 25 degrees centigrade today. तो जैसे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं ना, should not be, should be, should have been. Suggestive. Positive is based upon facts and thus not suggestive in nature. Normative economics is suggestive in nature. Value judgments. Positive economics does not give any value judgments. It gives value judgments. Examples हम बतेरे कर चुके हैं, बस और नहीं.